सो टॉपिक्स टाइप्स ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज़ द नेचुरल नंबर्स। सो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं लाइक वॉट एवर बी यूज फॉर द काउंटिंग पर्पज, बी स्टार्ट द आवर काउंटिंग फ्रॉम द नंबर 1, सो 1 2 3 4 5 अप टू द इन्फिनिटी, दीज नंबर्स आर कॉल्ड द natural numbers. So all positive integers, we can say it include the natural numbers include all positive integers from 1 to infinity. So all positive integers from 1 to infinity is called the natural number. It is used for the counting purpose, that's why it is called the counting numbers also. It is denoted by the symbol n. Whenever we talk about the whole numbers, so in whole numbers all the natural numbers along with 0 comes. Okay, so whenever we say whole numbers, so it means all natural numbers along with 0, because in natural number there was not a 0. So when we add 0 in the set of the natural numbers, we get the set of the whole numbers. Okay, so 0 1 2 3 4 5 up to the infinity, this number set is called the whole numbers. It is denoted by the W, and here are two terms which you should remember. This may be asked in the MCQ question type. So first statement is like this: every natural number is the whole numbers, as we have seen all natural numbers along with 0. So every natural number is the whole numbers and 0 is the only whole numbers that is not the natural number, because in the set of the whole numbers 0 is the only number that is doesn't come in the natural numbers. Okay, so these two statements are very important. You should remember these two statements. Okay, so next number type is integers. So integer, what is integer? Integer includes the negative of natural numbers. Negative means -1 -2 -3, negative of the natural numbers, and 0 and natural numbers. When we say natural numbers, we don't need to include positive. When we say natural number, that means this is always in the positive direction. When we have to refer specifically negative, so we have to say negative of the natural numbers. So negative of the natural numbers, 0 and the natural numbers. When we prepare the set of these numbers, the number set which we will get is the integer. So it is denoted by the letter Z, and letter Z from where it came from the word Jahlen, that means count, to count. Jahlen means count. So from that Z alphabet is being used for the denoting the integer. When we talk about the types of the integer, so there are 3 types of the integer. So positive integers from 1 to infinity, positive integer. Negative integer from sorry, that line है so negative integer -1 से -infinity तक. फिर नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर. सो 0 को हम नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं. सो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का अगर सेट लिया जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सो 0 1 2 3 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हो जाएगा. नॉन नेगेटिव ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर का अगर सेट लिया जाए तो 0 -1 -2 ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो जाएगा. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है ना. सो ये दोनों इसका सेट होगा. तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इंटीजर हो गए. उसके बाद अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर्स आपको पता होगा, ये हम बहुत ही बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रेशनल नंबर. ये एग्जांपल्स है रेशनल नंबर के 1/2 -8/9. ये 4 8 -6 -2 भी हैं, चूँकि 4 को आप 4/1 लिख सकते हो. तो इस तरीके से ये भी P/Q के फॉर्म में होता है, तो ये भी नेचुरल रेशनल नंबर हो गया. इसको Q लेटर से डिनोट करते हैं. जैसे किसी चीज़ का क्वोशिएंट निकालना हो तो हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट मिलता है. तो क्वोशिएंट वर्ड का जो मतलब रेशियो होता है ना, तो उससे जो क्वोशिएंट निकलता है तो उससे Q वर्ड आता है. उसी Q वर्ड को यूज करके ही ये Q
लेटर से हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। ओके, सो जब भी हम किसी रेशनल नंबर को, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम कोई रेशनल नंबर लिखते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि P और Q जो होता है वो को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब ये हुआ कि P और Q के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे आप अगर 4/6 लिख दिए तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इसका कॉमन फैक्टर 2 है, इसका कॉमन फैक्टर भी 2 है ना। तो यह का 1 के अलावा भी इसका कॉमन फैक्टर, तो जब भी हम इसको नेचुरल ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, इसको 2/3 के फॉर्म में लिखेंगे। 2 से मतलब डिवाइड कर देंगे, काट देंगे तो 2/3 बचेगा। तो ये हमारा 2 का और 3, ये P और Q हो गया। P मतलब 2 और मतलब 2 एंड Q मतलब 3। तो P एंड Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इसका 1 के अलावा, है ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं। और रेशनल नंबर्स में हमारा इंटीजर भी आ जाता है, होल नंबर्स आ जाता है और नेचुरल नंबर। जो अभी तक के हमने तीनों नंबर पढ़ा वो तीनों के तीनों नंबर रेशनल नंबर्स में आ जा सकते हैं। और किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जहाँ P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, सो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर के एग्जांपल देखा जाए तो √2, √3, √5, पाई एंड दिस नंबर इज इरेशनल नंबर्स। उसके बाद पाइथागोरस पहले मैथमेटिशियन ऐसे थे जो कि प्रूव किया कि जो 2 क्या है, √2, ये सॉरी यहाँ पे 2 हो गया, तो √2 इज इरेशनल नंबर्स उन्होंने पहले प्रूव किया। उसी तरीके से थायड्रस ऑफ सायरन, इन्होंने भी ये प्रूव किया कि ये सब भी इरेशनल नंबर थे। यहाँ पे हमने किसी भी नंबर में रूट नहीं लगाया है, ये मिस्टेक हो गई है। तो आप ये सारा रूट ही समझो, है ना। √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16। ओके, रूट लगाना हमने भूल गया है। रेडिकल साइन बेसिकली वी कॉल दिस रेडिकल साइन, तो रेडिकल साइन हमने लगाना भूल गया। तो उसके बाद लैम्बर्ट एंड लेजेंड्रे जो थे उन्होंने प्रूव किया कि 5 इरेशनल नंबर्स है। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हो गई। उसके बाद रियल नंबर्स क्या होता है? जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा, इन दोनों का अगर सेट बना दिया जाए तो जो नंबर सेट मिलता है हमें वो रेशनल नंबर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप देख सकते हैं, -1, -2, √3, √5, पाई एंड दिस नंबर। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। MCQ में पूछा जा सकता है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर्स। ओके, दिस इज वाई जो नंबर लाइन होती है उसको हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो नंबर लाइन जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये यहाँ पे 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं, तो वो नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन लेते हैं। क्योंकि इस नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट आप लोगे वो एक यूनिक रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए हम इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा फिर इवन नंबर आता है। आपको पता है इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 ये 2 से डिविजिबल हो जाता है, इसीलिए इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5 ये सब 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इसलिए इसको ऑड नंबर बोलते हैं। फिर हमारा प्राइम नंबर आ जाता है। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो कोई भी नंबर 1 से बड़ा, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड द प्राइम नंबर इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक से बड़ा कोई भी नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, मतलब एक तो 1 और एक तो नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स अगर नहीं है तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर 100 तक की बात किया जाए, अंडर 100 नंबर, देयर आर हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? देयर आर, हियर वी हैव रिटन दैट मीन 25। फ्रॉम 1 बिटवीन 1 to 100
there are 25 prime numbers. This things you should remember, it may be asked in some exam, है ना। तो 1 से 100 के बीच में हमें 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो अप टू 97 हमें टोटल 25 प्राइम नंबर्स मिलते हैं अप टू 100। अगर 100 से, तो अगर 100 तक है तो आप सिंपली मतलब लिख सकते हैं। अगर 100 से ऊपर है तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर है उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है। ओके, सो अगर कोई भी नंबर 100 से बड़ा है तो वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है। सो उसमें क्या होता है, हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप्स क्या है कि पहले स्टेप में एक होल नंबर्स को हम फाइंड करते हैं जो कि ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर पी। जो भी नंबर दिया गया है उसके स्क्वायर रूट से ग्रेटर देन एक होल नंबर्स, है ना, रूट, जो कि स्क्वायर रूट हो सकता है डेसिमल में आ जाए। जैसे स्क्वायर रूट मान लो 13.35 ऐसा आ गया, तो इसके ग्रेटर देन नियरली जो होल नंबर्स होगा वो हमारा 14 होगा, तो हम 14 को कंसीडर कर लेंगे। ओके, सो पहले स्टेप में ये करेंगे। दूसरे स्टेप में ये है कि P इज डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर लेस देन K। तो K क्या होता है, अपना जो हमारा ये नंबर मिला 14, है ना, जो भी हम होल नंबर निकाले, तो हम ये टेस्ट करते हैं कि जो हमारा गिवन नंबर है P वो इस जो प्राइम नंबर थे, मतलब जो ये नंबर था या होल नंबर, उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो फिर ये टेस्ट कर लेंगे। अगर जो नंबर हमारा दिया गया है P नंबर, जो हमने होल नंबर्स नियरली होल नंबर्स फाइंड आउट किया है, उससे डिविजिबल हो जाता है तो P इज़ नॉट ए प्राइम, अदरवाइज P इज़ प्राइम। अगर वो डिविजिबल हो गया तो प्राइम नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है ना। तो फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो भी नंबर दिया गया है 100 के ऊपर, आप उसका नियरली स्क्वायर रूट से ग्रेटर देन होल नंबर जो होता है उसको निकालेंगे। फिर वो होल नंबर्स को हम K मान लेते हैं, है ना, अभी के लिए उसको हम K मान लेते हैं। फिर हमारा जो नंबर था उसको P मान लिया है। तो फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जो नंबर हमारा है P, उसको जो हमने होल नंबर्स पाया है K, उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर या तो वो उससे डिविजिबल होगा या तो नहीं होगा। अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो P प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं होता है तो P प्राइम नंबर है ना। तो ये 3 स्टेप्स को यूज करके कोई भी नंबर जो कि 100 से ऊपर है, 100 से बड़ा है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए 191 दिया गया, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अब इसका अंडर रूट निकालोगे, मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो इसका स्क्वायर रूट से जो ग्रेटर देन होल नंबर आता है वो 14 आता है। इसका स्क्वायर रूट 13 मतलब 13 × 13 169 समथिंग होता है ना। देन सो इसका जो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा नंबर होल नंबर 14 हुआ, तो 14 से अब 191 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर ये डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए 191 प्राइम नंबर है। उसके बाद कंपोजिट नंबर आता है। कंपोजिट नंबर्स तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक नंबर ग्रेटर देन द वन व्हिच आर नॉट प्राइम आल्सो नोन एज कंपोजिट नंबर। एक से बड़ा नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है, एक से बड़ा नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 8, 9 ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं कंपोजिट नंबर के। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको हमें याद रखना है कि 1 क्या हुआ। 1 हमने पीछे देखा कि 1 प्राइम नंबर से भी नहीं होता, प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट ये दिया है कि 2 इज़ द ओनली इवन नंबर व्हिच इज प्राइम। हमने प्राइम नंबर में देखा कि 2 ही एक ऐसा नंबर आता है जो कि इवन है, बाकी सारे नंबर ऑड नंबर आ रहे हैं। तो 2 इज़ द ओनली इवन नंबर व्हिच इज प्राइम। और अगर 1 से 100 तक की बात किया जाए तो वहाँ पे टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये भी हमने जान लिया। को प्राइम्स क्या होता है अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, नंबर उसमें पढ़ा था। तो को प्राइम 2 नंबर्स A and B आर सेड टू बी द को प्राइम इफ़ देयर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। दैट मीन्स they should not have
एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं। जैसे 2 और 3 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 7 और 9 देखा जाए तो